वजीर सेहत हरीश राव ने इंकशाफ किया है कि हैदराबाद में 350 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं, जिसके नतीजे में उस्मानिया और गांधी अस्पतालों में आउट पेशेंट्स के फीसद में कमी आई है। वजीर सेहत हरीश राव ने वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलासानी श्रीनिवास यादव के हमरा 9 मुंतखब 15,000 आशा वर्करों को तकर्रुरनामे हवाले किए। बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा आशा वर्करों को तनख्वाह देने वाली रियासत है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से आशा वर्करों के मोबाइल बिल भी अदा किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम भी बेहतर तिब्बी खिदमात हासिल कर पा रही है। रियासती वजीर ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 3 MCH सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक कायम किए जा रहे हैं। अलावाजी प्री डायग्नोस्टिक में 134 मुफ्त टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने भी कोरोना वबा के दौरान आशा वर्कर्स की खिदमत को सराहा। మనకు అక్కడ ఉండే డాక్టర్ గారో అక్కడ ఉండే స్టాఫ్ నర్సో అక్కడ ఉండే ఆశా వర్కరో ఒక దేవుడిలాగా కనబడుతుంది, మనకు ఒక దేవతలాగా కనబడుతుంది. మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఏర్పడదు, కానీ మంచం మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఒక ఆశా వర్కర్లో ఒక స్టాఫ్ నర్స్లో ఒక డాక్టర్లో దేవుణ్ణి చూసుకుంటారు రోగులు. అంటే అంత గొప్ప అవకాశం ఎవరికి ఉంటుంది? వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు ఉంటుంది. అలాంటి గొప్ప శాఖలో మీరందరూ కూడా సభ్యులుగా మారుతా ఉన్నారు, సభ్యులుగా చేరుతా ఉన్నారు ఈరోజు. సో ఇది మంచి అవకాశం. మీ అందరం, మీరు మేము ఇకంతా మనమంతా ఒకటే, మనందరం కలిసిమెలిసి పనిచేసి మంచి ఉత్తమమైన సేవలు అందిద్దాం. తెలంగాణ రాకముందు నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకనే పరిస్థితి ఉండేది, కానీ ఇవాళ నేను పోత బిడ్డ సర్కారు దవాఖానకన్నంత గొప్పగా మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మార్పు వచ్చింది. ఇలా అనేక విషయాల్లో 100% టీకాలు వేసిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ దేశంలో రికార్డు సృష్టించింది. అంటే పిల్లలకు మనం వేసే వ్యాక్సినేషన్ టీకాలు ఏవైతే ఉంటాయో 100కు 100% టీకాలు వేసిన రాష్ట్రం ఏది భారతదేశంలో అంటే అది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. అంతేకాదు 100% ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీలు, అది ప్రభుత్వమా ప్రైవేటా కలిపి ఇంటి దగ్గర కాన్పులు కాకుండా ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ జరుగుతుంది. ఎక్కడ అంటే 100కు 100% మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने रियासत की तकसीम के वक्त किए गए वादों को पूरा न करने पर वजीर आजम मोदी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वो कल मोदी के दौरे का बायकाट कर रहे हैं। वजीर IT व कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में वुज़रा जगदीश रेड्डी और सत्यवती राठौड़ के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम तेलंगाना के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। हालांकि उन्होंने तकसीम के वक्त किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। गुजरात को 20,000 करोड़ रुपए की कोच फैक्ट्री देने और तेलंगाना को सिर्फ 521 करोड़ रुपए देने पर भी KTR ने सवाल उठाया। वजीर IT ने वजीर आजम के दौरे वरंगल का बायकाट करने का ऐलान किया। दरियासना उन्होंने TPCC चीफ रेवंत रेड्डी पर भी शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस और BJP हर इलेक्शन में मिलकर काम करती है। KTR ने तेलंगाना में BRS के तीसरी मर्तबा भी बरसर इक़्तिदार आने का इदा किया है। మోడీ గారు ఫలానా పని చేస్తలేడు తెలంగాణకి ఎందుకు మాట్లాడాడు? తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ గారి మీద నోటికొచ్చినట్టు వాగుడు, నోటికొచ్చిన బూతులు తప్ప మోడీని బీజేపీని ఒక్కటంటే పల్లెత్తు మాట అనకుండా ఎందుకు కాపాడుతూ ఉన్నాడు? నేను ముందే చెప్పిన బ్రదర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. గాంధీ భవన్లో గాడ్సే దూరిండు. ఈయన 100% RSS మనిషి, 100% బీజేపీ మనిషి. అలా కాంగ్రెస్లో ఉండి నాటకాలు ఆడుతూ ఉన్నాడు. ఇది మిత్రులు గమనించాలి. ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు మోడీ గారిని పల్లెత్తు మాట అనకుండా కాపాడుతున్నది ఎవరో కాదు, ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు. మీరు గమనించండి, చూడండి. మీరు కావాలంటే గత 6 నెలలుగా 8 నెలలుగా ఒక్కరోజు మోడీని పల్లెత్తు మాట అన్నాడా? ఒక్కరోజు, ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫలానాది రావాలా తెలంగాణకు అని మాట్లాడిండా? తెల్లారు లేస్తే ఇక్కడ 1000 కోట్లు, అక్కడ 1000 కోట్లు, ఇక్కడ లక్షల కోట్లు, పనికి మాలిన మాటలు. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఆయనకు నిజంగానే ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇచ్చుకోమనండి కంప్లైంట్. 9 ఏళ్ళకెళ్ళి మా మీద రాస్తానే ఉన్నారు కదా ఉత్తరాలు. CVCకి, EDకి, CBIకి, విజిలెన్స్కి, మన్నుకు, మశానంకు రాయ్. ఉన్నాయి కదా మీ వేట కుక్కలు, నీ బీజేపీ కలిసి మీరు ఆడిచ్చినట్టు ఆడే వేట కుక్కలు ఉన్నాయి కదా, రమ్మను. వద్దంటలేం కదా. ఏం తెలుస్తారో తెలుసుకోండి. అరే ఆడ ధరణిలో
నేను కూడా పెడతా ప్రెస్ మీట్, మంచిగా సావధానంగా చెప్తే ఇట్లా కాదు. ధరణిలో ఇప్పటిదాకా ఏమేమి జరిగింది, ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు అయినాయి, ఎంతమందికి లాభం అయింది, మేము కూడా పెడతాం. వాళ్ళకే వస్తాయి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్. तेलंगाना बीजेपी के नौमुंतखब सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी एक बहुत बड़े काफिले के साथ वरंगल रवाना हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को वरंगल का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी वजीर आजम के दौरे वरंगल को कामयाब बनाने और इंतजामात के लिए आज एक बड़े काफिले के साथ शहर हैदराबाद से वरंगल रवाना हुए। वरंगल पहुंचने पर उन्होंने आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में इंतजामात का मुआयना किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम के दौरे और उनकी मसरूफियात की तफसील बताई। बीजेपी रहनुमा एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव मुसलमानों को गुमराह करते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शशिधर रेड्डी ने वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की जानिब से बेगमपेट ओल्ड कस्टम बस्ती में एक मुस्लिम कब्रिस्तान में मुतनाज़ा अराजी पर ज़रूरी कार्रवाइयों को मुकम्मल किए बगैर ही तामीराती काम शुरू करने पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी का मुतालबा काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तिवा था। 1 जुलाई को तलसानी ने 295 लाख रुपये की लागत से कब्रिस्तान की तामीर के लिए जो संगे बुनियाद रखा वो सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए किया गया है। साबिक़ एमएलए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अराजी कब्रिस्तान के हवाले नहीं की गई है। उन्होंने तलसानी को झूठा करार देते हुए बगैर कार्रवाइयों को मुकम्मल किए तामीराती काम शुरू करने पर सख्त नुक्ताचीनी की है। अब लोग चौकन्ने रहिए। मैं बस्ती वालों से मैं ये कहूंगा कि ये जो बगैर सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुए, ना कॉन्ट्रैक्टर है ना हैंडओवर किया है और ये सब करके बोल रहे हैं, उनसे राइटिंग में लीजिए कि कौन सा इतना ये सारे काम है, कौन सा काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये महीने में कौन सा होगा, अगले महीने में कौन सा होगा, क्योंकि इलेक्शन 3-4 महीने में है। आपको दिल बहला के गलत फहमी में रखकर वो अपना सियासी मुफाद के लिए ये सब कर रहे हैं। सोच लीजिए। मुझे तो खुशी है अगर ये बन सकता है, लेकिन एक मेरा इस पर ऑब्जेक्शन है। मैं एतराज करता हूं कि रिटेनिंग वॉल किस लिए बनाते हैं? रिटेनिंग वॉल बनाते हैं मट्टी भरने के लिए। और जब आज बड़े बड़े चट्टान पहाड़ तोड़कर सड़कें बन रहे हैं, अंडरग्राउंड में बंजारा हिल, जुबली हिल जैसे जगह पर डबल अंडरग्राउंड सेलार्स बना रहे हैं, 2-2, 3-3 सेलार बना रहे हैं, तो यहां खुली जगह में उस पत्थर को फोड़कर एक अच्छी कब्रिस्तान बनाने में क्या तकलीफ है? ये मैं जानना चाहता हूं। मैं डिमांड करता हूं, लोग आप भी सोचिए कि ये मुनासिब है कि नहीं, बातों में मत आइए। हिंदुस्तानी बावर्ची खानों की जीनत समझे जाने वाले और हमा अक़साम के पकवान का जायका बढ़ाने वाले टमाटर अब काफ़ी महंगे हो गए हैं। टमाटर की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 1 किलो टमाटर की कीमत 250 रुपये फी किलो रही है। टमाटर का इस्तेमाल मुल्क भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने से ये सब्ज़ी बावर्ची खानों में देखने को नहीं मिल रही है। आए दिन इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। 20 से 30 रुपये फी किलो मिलने वाले टमाटर अब 250 रुपये फी किलो मिल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली ने टमाटर की काश्त वाले इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाया। नतीजतन पैदावार कम हो गई और कीमत अब आसमान छू रही है। उत्तराखंड के ज़िले उत्तरकाशी में टमाटर 180 से 200 रुपये फी किलो, गंगोत्री में 250 रुपये फी किलो, चेन्नई में 100 से 130 रुपये फी किलो और बेंगलोर में 101 से 121 रुपये फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। तमिलनाडु की स्टालिन हुकूमत ने टमाटर खरीदने वालों को कुछ राहत देते हुए राशन की दुकानों पर 60 रुपये फी किलो टमाटर फरोख्त करने का हुक्म दिया है। महकमा ज़राअत के माहिरीन के मुताबिक अगस्त के महीने तक भी टमाटर की कीमतों में कमी होने का इम्कान नहीं है। रियासत कर्नाटक में चोरों ने 1.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी कर लिए। टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में चोर कीमती अशिया पर हाथ साफ करने के साथ साथ टमाटर भी चोरी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कर्नाटक के बेलूर तालुके के
گونی سبحانلی گاؤں میں دھرنی نامی ایک کسان کے کھیت سے چوروں نے 1.5 لاکھ روپے کے ٹماٹر چوری کر لیے۔ بتایا گیا ہے کہ کسان نے ٹماٹر کاٹ کر رات مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اسے رکھا تھا، صبح ٹماٹر نظر نہیں آئے۔ دھرنی نامی کسان کا کہنا ہے کہ اس کے والد سوما شیکھر کھیتی کا کام دیکھتے تھے اور وہ جب سے فالج کا شکار ہوئے ہیں وہ خود کھیتی اور پھلوں کو منڈی لے جانے کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے۔ ٹماٹر کی پہلی فصل پر منافع حاصل کرنے کے بعد دوسری فصل فروخت کرنے سے پہلے ہی اس کے ٹماٹر چوری کر لیے گئے۔ پولیس نے ملزم کی شناخت کے لیے چھانبین کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہاویری اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ٹماٹر اگانے والے کسان ٹماٹر کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ وہ چوروں سے اپنے ٹماٹر کو بچا سکیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی اور یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے آج رین بازار ڈویژن میں جاری نالے کے کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA یاقوت پورہ نے رین بازار ڈویژن میں مولاکر چلے کے قریب جاری نالے کے کاموں کا جائزہ لیا اور عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے کاموں سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ابتدائی مجلس کے صدور و دیگر بھی موجود تھے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے عوام الناس بالخصوص مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ لاء کمیشن کو UCC سے متعلق اپنی رائے پیش کریں کہ یہ قانون مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی تیاریاں کرنے والی مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا اور کہا کہ مسلمانوں کی دین کی دوری کی وجہ سے ہی حکومت شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ الگ الگ مذاہب کو مانتے ہیں، سب کے الگ الگ قوانین ہیں، لیکن مسلمانوں کے قوانین اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے ہیں اور حکومت UCC لاگو کرتے ہوئے مسلمانوں کو زیر کرنا، مسلمانوں پر پابندیاں لگانا چاہتی ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا ہے کہ ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنے اور آپ کے قوانین ایسے نہیں ہے کہ آپ اور میں بنا لیے ہیں، یہ قوانین میرے رسول نے بنائے ہیں، یہ قوانین اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان قوانین کو لا کر مسلمانوں کو زیر کیا جائے، مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے، مسلمانوں کو کئی قسم کی پابندیاں لگائی جائے۔ ایک صاحب پرسوں بول رہے تھے، مجھے حیرت ہوئی، ایک پریس کانفرنس میں بول رہی اگر میں پوجا کر رہا ہوں تو میرے کو آ کے روکیں گے کیا؟ میرے کو حیرت ہوئی ان کے وہ جملے پہ۔ انہوں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا میرے کو حکومت روک سکتی ہے؟ یہ ہونا ہمارا بیان۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پوجا کر رہا ہوں تو روک سکتے، اپنے لوگ ہیں، کیا بول سکتے ان کو اپن؟ یاد رکھو میرے بھائی، یہ جو شرع کو بدنام کر رہے ہیں نا، یہ اپنے لوگوں میں سے، ہم لوگ ہی قوانین کو توڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ اگر حکومت کے سامنے نہ جھکیں تو حکومت کے سامنے یہ حکومت کی ہمت ہو سکتی کہ ہمارے طرف انگلی اٹھائے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آج شہر حیدرآباد میں بعد نماز جمعہ ڈاکٹر سید موئز قادری شرقی کی زیر قیادت احتجاج درج کروایا گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسے نذر آتش کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مسلمانوں میں اس حرکت کے خلاف غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں بھی ڈاکٹر سید موئز قادری شرقی کی قیادت میں مسلمان برادری نے بعد نماز جمعہ پرانے شہر کے علاقے سبزی منڈی کاروان میں سویڈن کے خلاف احتجاج کیا اور سویڈن کا پرچم نذر آتش کیا۔ ڈاکٹر موئز پاشا قادری نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے اس واقعے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے سویڈن سے اپنے تعلقات منقطع کر دے۔ انہوں نے مسلمان برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بطور احتجاج
स्वीडन की मसनूआत का बायकॉट करें और ट्रू कॉलर नामी ऐप को भी अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम जो अल्लाह की मुहकम किताब है, चंद दिन पहले ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन में गुस्ताखी की गई इस अल्लाह की किताब के साथ, उसके एहतजाज के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हैं। ये कुरान हमारा दस्तूर है, हमारा क़ानून है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए कुरान को नाज़िल फरमाया है। अगर इंसान कुरान को समझे तो उसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया है। हम किसी भी सूरत में कुरान की गुस्ताखी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारे मुसलमानों के ईमानी जज्बा है कि हम कुरान की गुस्ताखी कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन से अपने ताल्लुक़ात को मुनक़ते कर ले और उसके सख्त एहतजाज ये नोट ले उसका कि स्वीडन के सदर ने वहाँ के लोगों ने कहा है कि ये लोगों अखबार में जो आ रहा है कि बाज़ाब्ता गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ये जो गुस्ताखी की गई है, तो इसका हमारे मुल्क को सख्त नोट लेना चाहिए। मैं यही गुजारिश करता हूँ और सबसे अमन व अमान को कायम रखने की गुजारिश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद हुसैन अली शाह को दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के नए मुतवल्ली मुकर्रर किया है। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान सदर नशीन वक्फ बोर्ड और ख्वाजा मोइनुद्दीन CEO वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मोहम्मद हुसैन अली शाह उर्फ सुफियान बाबा को दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ नामपल्ली के मुतवल्ली मुकर्रर किया है। नौ मुकर्रर मुतवल्ली मोहम्मद हुसैन अली शाह ने आज अपना चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्हें मुतवल्ली की जिम्मेदारी सौंपने पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड और CEO वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में आज दरगाह सुफैन की चाबियाँ खिदमत के लिए लिया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अली शाह है, वल मरहूम मोहम्मद मुजाहिद अली शाह का दूसरा फर्जंद है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह खिदमत अंजाम दूँगा सबका। कौन से सेक्शन के तहत दिए थे साहब आपको? 63 सेक्शन के तहत। तो फाइनेंशियली आपको जो है पावर है जी, अभी तो वक्फ बोर्ड डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। कितने खिदमत मिल गई 63 बोलो तो 1 साल के लिए रहता साहब, टेम्पररी बोल रहे हैं आप? कोर्ट से ऑर्डर ला के लिए या आपको वक्फ बोर्ड खुद बुला के दी साहब? वो वक्फ बोर्ड से रब्ता कर लिए बेहतर। प्रोसीडिंग आप पूछी वक्फ बोर्ड से? प्रोसीडिंग तो बराबर ये खाली कोर्ट के ऑर्डर पे आए आप यानी वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड ऑर्डर भी दिया, उसके बाद फिर ड्यू प्रोसीडिंग जैसे वक्फ बोर्ड फॉलो करिए जो ऑर्डर हाई कोर्ट से। जी तो हाई कोर्ट से आप ऑर्डर लेके आए सर, तो उसके बाद आपको वक्फ बोर्ड दी सर? जी हाँ। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले में हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस में बैटरी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पागटपल्ली और बोमायापल्ली के दरमियान ये वाकया पेश आया है। मुसाफिरीन के मुताबिक एक कोच से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते दीगर कोचेस तक फैलने लगा। मुसाफिरीन ने खौफ के आलम में जंजीर खींच दी, जिसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। तमाम मुसाफिरीन ट्रेन से बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहे। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। ओहदेदारों ने इतला मिलने पर वहां पहुंचकर कोच को अलहदा किया और हिफाजती इक़दाम करते हुए ट्रेन को रवाना कर दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे के GM अरुण कुमार जैन भी वाक़े की इतला मिलने पर मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। कागज नगर की मशहूर व मारूफ शख्सियत अलहाज अहमद हुसैन का मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मरहूम कागज नगर के बल्दिया सदर नशीन मोहम्मद सद्दाम हुसैन के वालिद थे। इंतहाई खुश मिजाज, मिलनसार और दीनदार तबीयत के मालिक थे। बताया गया है कि वो बजरिए कार हैदराबाद के सफ़र पर निकले थे, ताहम रास्ते में पैदापल्ली के मुकाम पर नमाज की अदायगी की गर्ज से वजू कर रहे थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। मरहूम कागज नगर शहर की हर दिल अजीज समाजी और
सियासी शख्सियत थे। कागज नगर और अतराफ व अकनाफ के हजारों गुरबाओं, बेवाओं और गरीब बच्चियों की शादियों में इमदाद किया करते थे। उनकी नमाज जनाजा इरफान नगर कॉलोनी की इरफान मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई और तदफीन इरफान नगर कब्रिस्तान में अमल में आई है। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 5 फर्जंद और दुख्तर शामिल हैं। अवाम के जम वकील ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में मुफ्त बस सफर की सहूलत हासिल करने के लिए एक गैर मुस्लिम शख्स बुर्खा पहने बस में सफर करता पकड़ा गया। हुकूमत कर्नाटक ने शक्ति योजना के तहत खवातीन को बस में मुफ्त सफर की सहूलत मुहैया करवाई है। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए एक गैर मुस्लिम शख्स ने बुर्खा पहन लिया। बुर्खा पोश शख्स की शिनाख्त वीर भद्रैया के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने उसे शुबे की बुनियाद पर रोक दिया, बादअज़ां पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शख्स से पूछगछ की और वार्निंग देने के बाद उसे छोड़ दिया। बताया गया है कि शक्ति योजना के तहत मुफ्त बस सफर का फायदा उठाने के लिए उसने बुर्खा पहना था। रियासत तमिलनाडु के कोयम्बतूर के डीआईजी ने मुबैना तौर पर सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इतलात के मुताबिक कोयम्बतूर के डीआईजी विजय कुमार ने आज सुबह अपनी जान ली है। 45 साल आईपीएस अफसर का ताल्लुक तमिलनाडु के थेनी से था। उन्होंने सुबह की सैर से घर वापस आने के बाद अपने पर्सनल सिक्योरिटी अफसर की पिस्तौल से खुद को गोली मारकर ये इंतहाई इक़दाम किया। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने इस वाक़े पर सदमे का इजहार किया है और उनकी मौत को महकमे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है। याद रहे कि तमिलनाडु में हालिया बरसों में ये इस तरह का दूसरा वाक़या है जिसमें किसी सीनियर पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की हो। मुताल्लिक़ा पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ट्विटर ने तेजी से बढ़ते हुए हरीफ ऐप थ्रेड्स के ताल्लुक से मेटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। मेटा मालिकान ने थ्रेड्स को जुमेरात के रोज लॉन्च किया है और ट्विटर के मुतबादिल बताया है। ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने कहा है कि मुकाबला तो ठीक है लेकिन धोखाधड़ी ठीक नहीं है। ताहम मेटा ने उन दावों की तरदीद की है कि ट्विटर के साबिक मुलाजमीन ने थ्रेड्स बनाने में उनकी मदद की है। मेटा के मुताबिक नई ऐप से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जुड़ चुके हैं। थ्रेड्स का लुक और फील ट्विटर की तरह है। न्यूज़ फीड और रीपोस्टिंग भी काफ़ी मानूस है। ट्विटर की जानिब से मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक खत लिखकर थ्रेड्स बनाने के लिए ट्विटर के तिजारती राजों और दीगर दानिशवराना अमलाक को जानबूझकर और गैर कानूनी तरीके से गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।